हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकदंत एनवायरनमेंट एजुकेशंस। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ फ्लो इक्वलाइजेशन एंड स्क्रीनिंग्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट ग्रेट रिमूवल एंड ग्रेविटी सेपरेशन थियरी। दोनों थियरी क्या होती है इसके बारे में आज हम पार्ट 4 में देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ग्रेट रिमूवल। ग्रेट रिमूवल किस तरीके से होता है वो जानने से पहले इंपॉर्टेंट है कि ग्रीट होता क्या है। ग्रीट, इट इज a inert, dense and a highly abrasive material, and this includes like pebbles, sand, silt, broken glasses, chips, eggshells, etc. Okay, so जो भी हार्ड मटेरियल होता है जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट इन नेचर होता है, रिएक्टिव नॉट इन नेचर, दैट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर कंसिडर एज अ ग्रीट. नाउ grit removal of a grit can be done in a wastewater by in a grit chamber or by centrifugal separation of solids with the water. ये दो की मदद से हम grit removal easily कर सकते हैं. Grit chambers are designed to remove the grit. Grit को remove करने के लिए हम grit chambers का यूज करते हैं. नेक्स्ट, उसका लोकेशन कहाँ होता है ग्रीट चैम्बर्स? तो ग्रीट चैम्बर्स आर लोकेटेड आफ्टर द बार स्क्रीन. मीन्स हमने जो देखा था प्लांट लेआउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें आपने देखा होगा कि स्क्रीन के बाद होता है ग्रीट चैम्बर एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्राइमरी sedimentation tank. So like this is the process. Now what is the purpose of a grit chamber as per the CPHEEO manual? ये बहुत ही important manual है, ये याद रखना. So the main purpose of the grit chamber is to remove the grit so that to prevent the abrasion and wear of the mechanical parts, to reduce the accumulation of the grit in the pipelines, channels and the tanks, and to protect the biological process. Because if ग्रीट इज प्रेजेंट, अगर ग्रीट प्रेजेंट होगा तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को हिंडर करेगा, उसके प्रोसेस को कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होने देगा. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द ग्रीट. नाउ देर आर सम डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर द ग्रिड चैम्बर्स. कुछ जनरल क्राइटेरियाज हैं, जिससे कि जो टारगेटेड ग्रिड का साइज होगा, द साइज विल बी मोर देन 0.2 mm. उसको हम ग्रिड के कैटेगरी में लेंगे ग्रिड चैम्बर्स के अंदर. एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ग्रिड इज कंसिडर एज 2.65. डिटेंशन टाइम इज 30 to 60 seconds. Detention time is the time that the grit or the material remains in the chamber or a tank from inlet to outlet. Inlet और outlet के बीच के टाइम में जितना भी टाइम ग्रिट इस टैंक के अंदर रहेगा उसको हम डिटेंशन टाइम कहते हैं. Removal efficiency is 90 to 95% for the grit which is having a size that is more than 0.2 mm. 0.2 mm से बड़े साइज की जो ग्रीट होंगे उसका रिमूवल एफिशिएंसी ग्रीट चैम्बर्स के अंदर 90 to 95% होता है. Now these are the types of grit chambers that are available in the market. That is the horizontal flow gravity grit chambers, aerated grit chambers, vortex and a force type, and detritus tank. Okay, so this can be a rectangular or it can be a square one. Next, first one is the horizontal flow grit chambers. These chambers works on the principles of gravity. Grits are directly settled with the help of a gravity. The example of the horizontal flow is horizontal flow gravity chamber is sedimentation tank. Sedimentation tank. Sedimentation tank के अंदर हम क्या करते हैं कि with the help of a gravity we are settling the grits. Then velocity of a flow velocity we have to maintain 0.25 to 0.30 meter per second, and this generally the cross section of the horizontal flow grid chamber is rectangle or trapezoidal. Okay, like this shape the channels are designed. Flow velocity is controlled using a partial flumes or a proportional flow weirs, and requires the mechanical and manual cleaning mechanisms for grit removal. Grit removal करने के लिए या तो हम मैकेनिकल या तो मैन्युअली क्लीनिंग मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं. जनरली ग्रिट चैम्बर्स के अंदर आप देखोगे कि मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज एट अ टाइम, जैसे कि ये आपका ये प्लान व्यू है, प्लान व्यू में देखोगे कि इस तरीके से होता है. दिस इज द फर्स्ट ग्रिट चैम्बर, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड ग्रिट चैम्बर. ओके, वन एट अ टाइम वन ग्रिड चैम्बर इज फंक्शनिंग. अगर हम इसको मेंटेनेंस में लेते हैं, ये ऑपरेशनल नहीं होगा फर्स्ट चैम्बर, तो हम सेकंड चैम्बर को यूटिलाइज करेंगे. दैट्स वाई इट इज मल्टी चैनल
grid chambers. Now, this is a design criteria for the gravitational horizontal flow grid chambers as per the CPHWEO recommendations. ये मैनुअल के हिसाब से जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो ये दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन क्राइटेरिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप नेशनल लेवल पे कोई भी डिज़ाइन होता है, ठीक है ना, डिज़ाइन कोड जो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखते हैं वो यही होता है, हम इसके अकॉर्डिंग ही सभी डिज़ाइंस करते हैं चैम्बर का। देन यहाँ देखोगे आप कि जो पैरामीटर्स कौन से यूज़ होते हैं और उसका रिकमेंडेशन कितना किया गया है। तो फ्लो वेलोसिटी 0.3, डिटेंशन टाइम 30 to 60 seconds, depth of flow is 0.25 to 0.80 meter, freeboard is 3 meter, 0.3 meter, sorry, grid storage depth is 0.25 meter. Okay, and the total depth is working depth, grid storage depth, and free depth. Means this is your freeboard. Okay, this is your working depth. This is a working depth. This is your freeboard, and the bottom is your grid storage. Okay, so this total combination is known as a total depth. Length to width ratio is 5:1 to 7:1, and the number of channels we are providing is always more than two or more than two. Okay, then head loss we are considering 0.06 to 0.15 meter. Grid removal size is more than or equal to 0.15 mm, and we can clean the grid chambers by manually or mechanically. The second one is the aerated grid chambers. इसमें देखोगे कि ये जो grid chambers है इसके अंदर यहाँ से हम वेस्ट वाटर का इनलेट करते हैं ना, ये दिस इज योर इनलेट। फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शंस वी आर वेस्ट वाटर को हम एंटर करवाते हैं। जैसे ही एंटर करेगा वो टेंजेंशियली एंटर करके एक स्पाइरल फॉर्म में आपका जो वाटर है वो इस तरीके से मूवमेंट होना स्टार्ट करेगा। नाउ इसके अंदर आप देखोगे कि जो भी सॉलिड्स प्रेजेंट हैं वो सॉलिड्स इस स्पाइरल मोशन की वजह से क्या हो रहा है कि वो टेंजेंशियली जो बॉडी है या आउटर बॉडी जो दिख रही है इस आउटर बॉडी के साथ स्ट्राइक करके वो बॉटम पोर्शन जो है ये पोर्शन इस पोर्शन में नीचे के पोर्शन में थ्रू आउट वो कलेक्ट हो जाता है और जहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली। सो दिस इज द एरिएटेड ग्रिड चैम्बर। सो वी आर the flow pattern is spiral. Flow pattern is spiral, and along with this spiral flow pattern, we are introducing air into it. Okay, so that interaction will be there, and the speed of the flow will be reduced, and hence the grids will be collected at the bottom of the tank. So this is your aerated grid chambers. Now, in this chamber, air is introduced into the wastewater to create a spiral flow pattern, allowing the grid to settle while keeping the organic particles in suspensions. Okay, now the shape of the spiral flow pattern will either circular or in a square. Means जो grid को हम grid चैम्बर के जो हम डिजाइन करेंगे वो आइदर स्क्वायर फॉर्म में होगा या तो स्क्वायर सर्कुलर फॉर्म में होगा। एयर इज supplied through diffuser placed at one side of the chamber. Grit settles in the center from where it can be removed via hopper और मैकेनिकल स्क्रैपर। ये दो की मदद से जो सेंटर में मैंने बताया आपको यहाँ जो कलेक्ट होने वाला है सेंटर पोर्शन में वहां से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डिजाइन वेलोसिटी is around 0.3 to 0.5 meter per second, and we can see the advantage that the higher efficiency we are obtaining for the removal of grit, and it is considered as a pre-aerations. We are providing air, that's why what will happen, the color and BOD will be reducing. So pre-aerations we are doing. Okay, apart from that thing, require less area compared to the horizontal flow chambers. What is the limitation? The limitation is more energy intensive air supply you have to provide into it. So it is a more energy intensive method. Okay, design criteria, air supply is 0.15 to 0.45 meter cube air per minute per meter of a chamber length. Detention time is 2 to 5 meter. Depth of the tank 3 to 5 meter. Velocity pattern is spiral. Okay. The grid removal size is again greater than equal to 0.2 mm. Width to depth ratio is 1 is to 1 to 1.5 is to 1, and we can clean by mechanically using a hopper method. Okay. The third one is a vortex type or a grid chambers, in which you can see this is the vortex type grid chambers. This is a simple method. Okay, so in here you can see the first one. Here we are entering the influent.
water will enter from here, influent. It will go and it will turn and turn around over here. Okay, so your water will be entering from here and it will rotate over here. So motion will be again circular. Okay, what will happen? A centrifugal action will be there, and because of which the flow velocity will be reducing. Flow velocity जो है वो reduce हो जाएगा, और reduce होने की वजह से जो भी ग्रिड्स इसके अंदर प्रेजेंट्स है वो एट द बॉटम यहाँ पर देख सकते हो। ये सेक्शन आपका 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 2 में ये हॉपर पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर आपका सभी ग्रिड्स कलेक्ट हो जाएंगे। ग्रिड विल बी कलेक्टेड एट द बॉटम, एंड उसको फिर आप क्या करोगे, यहाँ से शट करोगे वाटर इनलेट करने के बाद, और वो रोटेट होते होते आपका ग्रिट नीचे सेटल हो जाएगा, और जो क्लियर वाटर ऊपर के चैम्बर में रह जाएगा, वहां से फिर आप चैम्बर में से आपके एफ्लुएंट को बाहर निकाल लोगे। तो एफ्लुएंट विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ओके, फिर यहाँ जो आपका हॉपर में कलेक्ट हुआ ग्रिट, आप यहाँ देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ दिस मैटर वी आर कलेक्टिंग इन दिस कंटेनर। ओके, इस टैंक में हम ग्रिट को करते हैं, और उसके बाद वहां से उसको डी वाटरिंग करके रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ we are using a tangential inlet to create a vortex flow pattern, and grit is forced to the bottom center due to the centrifugal forces and the gravity. Okay, तो centrifugal force and gravity की मदद से आपका जो grit है वो bottom portion पे पहुंच जाता है. Now the flow enters tangentially and exit actually on the top. Axially मतलब ऊपर से वो निकल जाता है. Grit settles into a collection chamber at the bottom. It gives the higher efficiency for the removal of the grit. Now, what is the limitation? The design is very complex, higher capital is required, and the operation cost is also more. So, this is the limitation for the vortex grit chamber. Now, you can see over here that there is a design criteria for the vortex grit chamber. You can see the flow pattern is tangential, or which creates a vortex type. Okay, detention time is 20 to 60 seconds, depth of the tank 2 to 4 meter, velocity at the outer wall जो बाहर की जो वॉल होती है, उस बाहर के वॉल पे जो वेलोसिटी मिलेगा, मतलब जो पार्टिकल्स वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं वो आपका 0.3 मीटर पर सेकेंड होगा। ग्रेट रिमूवल साइज more than or equal to 0.15 mm, and we can clean the grid chamber by pump or airlift from the central hopper. Okay, now the fourth one, this is the fourth criteria for the डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द डेट रेस टैंक। अब ये जो टैंक होता है वो सिमिलर होता है हॉरिजॉन्टल की तरह, बट इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है आइदर, और इट कैन बी अ स्क्वायर। ओके, सो फ्लो पैटर्न हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल। अब इसमें क्या होता है ना, देखो मैं आपको एक डिजाइन बताता हूँ टैंक का। इस तरीके का टैंक टैंक होता है। फ्लो आपका इनलेट यहाँ से होगा, this is your influent inlet. Okay, and radially it goes from here, and यहाँ पर आपका exit होगा, this is your exit, that is your outlet. Okay, and outlet effluent. Okay, so the water will be entering from the inlet influent, and it will goes like this way, and finally it will exit from the other end. So the entry and exit is radially. You can see over here, entry and exit is radially, and because of which the particles that are present in the wastewater will get a time, and its speed will be reduced, and with the help of gravity it will settle at the bottom of the tank. तो ये एक मेथड होता है डेट्रियस टैंक के अंदर। ओके, हियर यू कैन सी द डिटेंशन टाइम इज 1 to 3 minutes। ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज आपका इनलेट और एग्जिट जो है वो अदर पॉइंट पे है। नाउ डेप्थ ऑफ द टैंक इज 0.6 to 1 meter, velocity is 0.15 to 0.3 meter, grit removal size is okay, and the cleaning we can either do by manually or mechanically. Now the next topic is gravity separation theory. Gravity separation theory क्या होता है कि ग्रेविटी की मदद से जो हम सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं वेस्ट वाटर के अंदर से, वो थियरी पढ़ना है हमको कि किस प्रकार वो सॉलिड्स सेपरेट होते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड दिस थियरी एंड प्रिंसिपल इज इम्प्लीकेबल टू द सेडिमेंटेशन टैंक एंड अदर टैंक्स ऑन विच द थियरी इज एप्लीकेबल। सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है, जहाँ पर हम फिजिकल मेथड यूज करते हैं, फिजिकल फोर्सेस यूज करते हैं, नेचुरल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, प्रेशर, वहां पर हम ये ग्रेविटी सेपरेशन थियरी को
इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। द ग्रेविटी सेपरेशन थियरी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड द मेनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स। देखा, मैंने बताया आपको कि बहुत सारे जो ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं उसके अंदर इस मेथड को, इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी चैम्बर्स, grid chambers, sedimentation tank, then primary clarifier. In these three, we are using this fundamental principle. Okay. It is a fact that the solid particles, जो solid particles होता है fluid के अंदर, either settle और rise. कुछ होंगे वो settle करेंगे, कुछ होंगे with the help of a turbulence कुछ rise करेंगे. So either they can rise, or due to the density difference between the particles and the fluids, or under the influence of the gravity, they will settle. So because of these things, we are separating the solids from the wastewater. ये आप टैंक देख सकते हैं, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट वन इज योर इनलेट जोन. दिस इज योर इनलेट zone. Then when the particles enter from the inlet zone, okay, say for example, here it is a particle A. Okay, this is your particle A. Particle will enter here. Okay, from the inlet zone, it will travel like this, करेक्ट। व्हेन ये पार्टिकल इतना स्ट्रेट कब ट्रेवल करेगा, जब उसके पास एक खुद की बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, तब जाके वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा, करेक्ट। अगर उसके पास एनर्जी बहुत स्लो है, और यहाँ जो वाटर मीडिया है ना, इसके अंदर जो टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि एक रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, और ये जो पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है ना, उसका पाथ धीमे धीमे क्या होगा, वो डेविएट करना शुरू करेगा। तो डेविएट होके क्या होगा, वो धीमे धीमे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। और ये जो वॉल है, उस वॉल के साथ में, ये स्ट्रेट वॉल के साथ में वो स्ट्राइक करके वो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा, करेक्ट। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं बहुत सारे, वो जैसे ही इनलेट जोन से अंदर आते हैं, वो एक ट्रेजेक्टरी मेथड को फॉलो करते हैं, ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करते हैं। तो आपका जो पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये इसका सेटलिंग जोन हो गया। इनलेट जोन के बाद क्या हो गया, ये जो दिख रहा है आपको, ये है इसका सेटलिंग जोन, सेंटर पोर्शन। सेटलिंग जोन में क्या होगा, सभी जो सॉलिड्स है वो नीचे सेटल्स हो जाएंगे बॉटम में, करेक्ट। यहाँ सेटल्स होंगे, तो ये हो गया आपका स्लज जोन। एंड जो भी आपका एफ्लुएंट बच गया, जो क्लियर वाटर बच गया यहाँ पर, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो ये हो गया आपका एफ्लुएंट जोन। तो देर आर 4 जोन: इन्फ्लुएंट जोन, सेटलिंग जोन, स्लज जोन एंड एफ्लुएंट जोन। ओके, इनलेट, ट्रीटमेंट, sludge separation, and then outlet. Okay, so this way the particle is moving inside a tank. टैंक के अंदर इस प्रकार से वो मूव होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे कि जो भी पार्टिकल है, हमने जो यहाँ पर पार्टिकल सिलेक्ट किया था, इस पार्टिकल का एक वेलोसिटी है, दैट इज योर VH। पार्टिकल का कितना वेलोसिटी दिख रहा है आपको, VH, velocity in horizontal direction, and vt, that is your velocity in downward direction. T represents the terminal velocity. T represents the terminal velocity. Okay, so vt is given, either you can write vd or vt, no problem. Okay, so this will be the direction of the particle moving. Okay, now, when a particle enters into a fluid, there are three main forces that are acting on it. The very first one is the gravitational force in the downward direction, buoyant force that will be in the upward direction, and the drag force that will be opposing the motion. This will be opposing the motion, drag force. Correct? Now, the formula for the gravitational force that will be acting on the particle will be Fg is equal to pi by 6 dp cube rho t into g. dp is the diameter of the particle, rho p is the density of the particle, and g is the gravitational acceleration. Similarly, the buoyant force that will be acting, say for example, this is your particle A. So the gravitational force will be acting like this way, Fg. Buoyant force will be acting like this way, so it will be Fb. And drag force will be again acting opposite to this, so this will be your Fd. Formula for the buoyant force will be pi by 6 dp cube rho f into
G. Rho F is the fluid density because the buoyant force acting. That's why. Drag force, the formula will be 1 by 2 CD rho F, density of a fluid, A into V square. Now CD is the drag coefficient, A is the cross sectional area of the particle, and V is the velocity, settling velocity or terminal velocity, we can say it. Now the Stokes law is applicable for the settling velocity, or we can see this is the terminal velocity. Okay, terminal velocity. So the formula is 1 by, you can either write this GD square upon 18 rho of density of a particle minus density of a fluid to mu. This is the formula of the terminal velocity. Okay, and higher or the larger the particle size, more faster it will settles. Similarly, if the viscosity of the fluid is higher or more, the settling velocity will be slow. Okay, and there is a temperature role also. If the temperature is more, viscosity will be affected, means viscosity will reduce, and hence the settling will be increase. Okay, so like this way the settling happens. Now types of settling in a wastewater plant. टाइप्स ऑफ सेटलिंग किस प्रकार का होता है? तो टाइप वन सेटलिंग कंसिडर एज अ डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, जिसके अंदर पार्टिकल सेटल्स होते हैं इंडिविजुअली विदाउट एनी इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल्स. ओके, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बीकर रखा, बीकर में वाटर है, ठीक है ना. इस वाटर के अंदर, बीकर के अंदर वाटर है, इस वाटर के अंदर मैंने फर्स्ट केस में ब्लैक कॉटन सॉइल ऐड किया. ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल ऐड किया. अब मैं एक पार्टिकल ब्लैक कॉटन सॉइल का जैसे ही इसके अंदर ऐड करूंगा, उस वो क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा. करेक्ट. बट अगर सेम इस केस, दूसरे केस के अंदर देखते हैं, केस 2, जिसके अंदर मैंने सैंड सैंड पार्टिकल को इस वाटर के अंदर ड्रॉप किया. जैसे ही ड्रॉप करूंगा वो स्प्रेड नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, सेटल हो जाएगा. सो दिस इज द इंडिविजुअल सेटलिंग ऑफ अ पार्टिकल. सो दिस type of settling of a sand in a grid chamber is considered as a discrete particle settling, means it is not interacting with any other particles. The type 2 type of settling is flocculent settling, in which we are making a flocks and we are allowing the small individual particles to attract to these flocks, and a bigger size particles is formed, and we then allow that flocks to settle at the bottom of the tank. So this kind of settling is considered as a flocculent settling. Okay, here you can see the particles are agglomerated and then they are settled. The third type of settling is hindered settling or a zone settling. जो हमारा settling zone था सेंटर पोर्शन में टैंक के, करेक्ट, यहाँ पर वो hindered zone settling बनता है. Higher concentration and particle mass settles as a mass. ओके, एंड द टाइप 4 इज द कंप्रेशन सेटलिंग. अब एक एक करके इसको हम फिगर में देखते हैं. यहाँ आप देख सकते हो डिस्क्रीट पार्टिकल के अंदर, टाइप 1 के अंदर, कि जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो इंडिविजुअली सेटल हो रहा है, ये आपका स्लज जोन के अंदर. करेक्ट. सो दिस इज योर डिस्क्रीट सेटलिंग. फ्लॉकुलेंट सेटलिंग में क्या होगा कि हम कोई केमिकल्स को ऐड करेंगे. वी आर एडिंग सम केमिकल्स टू मेक फ्लॉक्स. जैसे ही फ्लॉक्स बन जाएगा, हम स्मॉल जो भी पार्टिकल्स हैं वो सभी को एग्लोमरेट करेंगे. तो ये एक फ्लॉक है, इस फ्लॉक के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल सभी अट्रैक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा. जैसे यहाँ पर देख रहे हो बड़े बड़े पार्टिकल्स बन रहे हैं, जो वो सभी पार्टिकल्स क्या होगा, फिर एक जैसे ही उसका मास बढ़ जाएगा वो सेटल कर जाएगा स्लज जोन के अंदर. सो टाइप 3 इज योर हिंडर्ड जोन. इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सभी एक साथ क्या करेंगे, फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे को हिंडर्ड करेंगे. तो जो बड़े पार्टिकल्स यहाँ पर हैं वो छोटे पार्टिकल्स के पाथ को हिंडर्ड करेंगे और वो यहीं रुक जाएंगे. तो ऐसे करते करते एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है. तो दैट इज योर हिंडर्ड जोन और अ सेटलिंग जोन. नेक्स्ट, द टाइप 4 इज योर कंप्रेशन जोन. कंप्रेशन जोन में क्या होता है कि जैसे ही हम सभी पार्टिकल्स का सेटलमेंट करते हैं, वो एक लेयर फॉर्म कर देता है. ठीक है ना. फिर क्या होगा कि जैसे ही कुछ बड़े पार्टिकल्स होंगे वो पहला लेयर फॉर्म करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स थोड़ा डिले करेंगे सेटल होने में, और वो फिर क्या करेगा, इसके ऊपर धीमे से सेटल कर जाएगा, सेकेंड लेयर. सो फर्स्ट लेयर विल बी देयर,
and after that second layer will be there. ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के ऊपर आएगा, ये लेयर का जो वेट है वो बढ़ जाएगा, और एक साथ ही क्या करेगा, वो एक दूसरे को कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि पूरा का पूरा लेयर स्लज जोन में सेटल हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, because of compression, this settling is happening. That's why this type of settling is known as a compression settling. So type 1 is discrete settling, type 2 flocculent settling, third type is a hindered and a zone settling, and the fourth one is a compression settling. So this is all about the today's two topic, and आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे फर्दर टॉपिक्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, वो हम कवर करेंगे. सो एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट टेलीग्राम चैनल जो था वो एक्टिवेट हो चुका है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे एक दंत एनवायरमेंट एजुकेशन सर्च करना, या तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है ना. उसमें आप सर्च करना तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ जोन करना, तो वहाँ पर मैं आपको ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ शेयर कर दूंगा. ओके, बहुत ही स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि सर प्लीज़ शेयर करना. मैं ट्राई कर रहा था, वो रिट्राइव नहीं हो रहा था मेरा टेलीग्राम चैनल, तो मैंने उसको रिट्राइव किया, और फिर मैंने उसको फिर से एक्टिवेट करके उसमें मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना. एंड इफ़ यू लाइक द चैनल्स प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल दी फ्रेंड्स टू ज्वाइन दी चैनल इफ रियली इट्स वर्थ. अगर आपको लगता है कि कुछ वर्थफुल चल रहा है तो आप प्लीज़ एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दी एकदंत एनवायरमेंट एजुकेशन फ्रेंड्स.